वेलकम बैक टू माय चैनल वाईएलपी गगन इन्फो। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू को देखेंगे। ओके गाइस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पीवाईक्यू बीकॉम ऑनर्स यूजीसीएफ एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1। आपके टोटल मार्क्स 90 है, ड्यूरेशन 3 आवर, क्रेडिट्स 4 बिकॉज ये डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। हर क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा एंड आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, देन उसके बाद हिंदी मीडियम में। ओके गाइस, क्वेश्चन 1A, मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टुडेज सिनेरियो। B, why is coordination considered as the essence of management? Discuss the techniques of effective coordination. Optional question A, what is the core argument of contingency theory of management? Critically evaluate the contingency approach of management. B, define Indian ethos for management. Elaborate the basic principles of Indian ethos for management. Second question A, management by objective is comprehensive management system which integrates many key managerial activities in a systematic manner and that is consciously directed to achieve the state objectives. Explain this statement and discuss the steps involved in MBO process. B, what do you understand by Delphi approach of decision making? Explain the process of decision making in Delphi technique by giving examples. Optional question A, what do you understand by industry structure? Discuss the primary model to assess the structure of industry developed by Michael E. Porter. B, what is meso environment? Elaborate the elements of meso environment of a business firm by giving examples. Question 3A, a manager frees himself from office responsibilities the moment he delegates a part of his authority to his subordinates. Comment on this statement and discuss the process of delegation of authority. B, also discuss differentiate between departmentalization by function and departmentalization by product. Also give merits and demerits of departmentalization by function. Optional question A, both formal and informal organizations are necessary for group activity just as two blades are essential to make a pair of scissors workable. Comment on this statement and differentiate between formal and informal organization. B, explain team organization structure and network organization structure, how these organizations are useful in modern complex business environment. Also discuss their merits and demerits. Fourth question, what is motivation? Discuss the various types of factors affecting motivation. B, leadership is the essence of management. Comment on this statement and explain the various types of leadership styles. Optional question A, what is leadership? Discuss the factors affecting leadership. B, explain the differentiate between economic added value and market value added techniques of controlling. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा केस स्टडी बेस्ड है। आपको एक केस दिया जाएगा, देन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो भी आपसे पूछे जाएंगे। अदरवाइज इसके ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन मिलेगा। 3 में से यानी 2 टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट। सो ये था इंग्लिश मीडियम में। अब हम देखते हैं हिंदी मीडियम में। सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ए क्वेश्चन हिंदी मीडियम फर्स्ट ए, प्रबंधन उद्यम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा आज के परिदृश्य में प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कीजिए। बी, समन्वय को प्रबंधन का सार क्यों माना जाता है? प्रभावी समन्वय की तकनीकों की चर्चा कीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन ए, प्रबंधन के आकस्मिकता सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या है? प्रबंधन के आकस्मिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बी, प्रबंधन के लिए भारतीय लोकाचार को परिभाषित कीजिए। प्रबंधन के लिए भारतीय लोकाचार के बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 2A, उद्देश्य द्वारा
प्रबंधन एक ऐसी व्यापक प्रबंधन प्रणाली है जो कई प्रमुख प्रबंधकीय गतिविधियों को एक व्यवस्थित तरीके से एकीकृत करता है और जो कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सचेत रूप से निर्देशित है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और MBO प्रक्रिया में शामिल चरणों की चर्चा कीजिए। एंड बी, निर्णय लेने के डेल्फी उपागम से आप क्या समझते हैं? डेल्फी तकनीक में निर्णय लेने की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑप्शनल क्वेश्चन ए, उद्योग संरचना से आप क्या समझते हैं? माइकल ई पोर्टर द्वारा विकसित उद्योगों की संरचना के आकलन के लिए प्राथमिक मॉडल की चर्चा कीजिए। बी, मेसो पर्यावरण क्या है? एक व्यावसायिक फर्म के मेसो परिवेश के तत्वों का उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन 3A, एक प्रबंधन अपने उत्तरदायित्व से स्वयं को उसी क्षण मुक्त कर लेता है जब वह अपने अधिकार का एक भाग अपने अधीनस्थों को सौंपता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और प्राधिकार के प्रत्यायोजन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। बी, कार्य द्वारा विभागीकरण और उत्पाद द्वारा विभागीकरण के बीच अंतर पर भी चर्चा कीजिए। कार्य द्वारा विभागीकरण के गुण और दोष भी बताइए। ऑप्शनल क्वेश्चन ए, सामूहिक गतिविधि के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठन आवश्यक है, जैसे कैंची की एक जोड़ी की काम करने योग्य बनाने के लिए 2 ब्लेड आवश्यक है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर कीजिए। बी, टीम संगठन संरचना और नेटवर्क संगठन संरचना की व्याख्या कीजिए। आधुनिक जटिल कारोबारी माहौल में ये संगठन कैसे उपयोगी है, साथ ही उनके गुण दोषों पर भी चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन ए, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों की चर्चा कीजिए। बी, नेतृत्व प्रबंधन का सार है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए तथा विभिन्न प्रकार की नेतृत्व शैलियों की व्याख्या कीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन ए, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। बी, नियंत्रित करने की आर्थिक वर्धित मूल्य और बाजार मूल्य वर्धित तकनीकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और अंतर कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है। आपको केस स्टडी करना और पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं, या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन करना है शॉर्ट नोट वाला, शॉर्ट टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी। कोई ऑप्शन ए, 21वीं सदी की प्रबंधन चुनौतियाँ, कार्यस्थल विविधता, मूल्य उन्मुख समग्र प्रबंधन, भागवत गीता से प्रबंधन पाठ। सो ये था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का PYQ। 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, क्रेडिट्स 4 है, ड्यूरेशन 3 आवर है, ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, यानी 18 मार्क्स के हैं। आप आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। ओके गाइज, लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होगा एंड शॉर्ट नोट वाला होगा। आपको जो करना हो आप वो कर लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस।